Okay, so let's begin. Wait, throw some. Thank you. So last time जो है, we were solving the Rock's equation. In external for the relativistic particle in external fields like electric and magnetic field. और अगर आपको याद हो तो we were able to decompose the equation for a 4 by 1 column vector to two equations each for 2 by 1 column vector, and the final equations were, this is the external magnetic vector potential, this is the Pauli matrices vector, phi is the external potential, eta and psi are the two unknown spinors, two spinors. So I'll send out these notes as well. If you don't want to write down the notes, you don't have to. मैंने स्कैन कर लिया, मैं तो आज भेज दूंगा. So ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है. When particle is present in the external magnetic vector potential and scalar electric potential. और basically किसी भी system के लिए what we have to do, we have to solve for psi and eta. So by the way, in equations का I think for hydrogen atom exact solution भी कुछ साल पहले लोगों ने find कर लिया था, but that's too complicated. And what we want to do, we sort of want to gain understanding for the behavior of an electron in an external field, which is treated fully relativistically. So हम उस exact solution की बजाय we will work out the approximations so that we can compare it with the Schrodinger equation as well and see what's the origin of different terms and understand their physical significance. So सबसे पहले तो let's start with the lowest order limits. So उसमें सबसे पहले let's do the zeroth order approximation, which is the non-relativistic limit. So in the non-relativistic case, our equation should reduce to Schrodinger equation, right? So let's see if they do. So just to recall, कि जो हमारी E है, this is the total energy of the particle. So what we can imagine कि जो हमारी energy है, it is a sum of two terms. One term which contains everything else other than the rest mass energy, and then we have the rest mass energy. So कोई भी particle है, can break it into its energy at least two parts: the rest mass energy plus everything else. Okay, so for understanding non-relativistic terms, so first of all let's break this energy into this part, and then if we take this thing, तो अभी तो मैं just ये E को इधर substitute कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E plus mc square, E prime plus mc square, और वो जो mc square वाला टर्म है ना उसको भी इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा E prime plus प्लस की माइनस नहीं, ये mc square psi होगा तो उधर से mc square psi, तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगा इधर. तो दिस इज C minus iota h bar del minus k plus q phi psi. इधर रखेंगे E prime plus mc square, तो वो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा. सो वी विल गेट E prime plus 2 mc square eta C minus iota h bar del minus qa sigma psi plus
क्यू फाइव ईटा। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अभी ये दोनों एग्जैक्ट है, ठीक है, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन। जस्ट ई को जो है वो दो पार्ट्स में लिखा है। लेट्स नाउ यूज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। और इस अप्रोक्सीमेशन में let me call it zeroth order. Let's imagine that this energy is extremely small as compared to the rest energy, and also the electric scalar energy is much less than mc square. So ये E prime है, इसके अंदर particle की so this is actually mostly kinetic energy, ठीक है, क्योंकि जो potential energy it's coming here and through this vector potential which is adding to the momentum. So what we are actually assuming कि जो kinetic energy है वो भी rest mass energy से बहुत कम है, which mean कि particle slowly move कर रहा है, और जो external potential energy है, electric potential energy, वो भी बहुत कम है. We are not putting the particle in a strong electric field. It's a very weak and weak with respect to the particle's rest mass energy. Okay, so this means that if I now apply this condition here, एक तो ये कि ये जो E prime है I can ignore it with respect to this 2mc square, और ये बन जाएगा E prime into eta, बल्कि ये जो Q phi term है इसको भी I can ignore, right? क्योंकि Q phi prime जो है that is small as compared to E prime eta. So this will mean that my eta is can be approximated as 1 over 2 mc minus iota h cut del minus qa sigma dot psi. अब इस ईटा को let's substitute it here. अच्छा, इसमें और इस इक्वेशन में I can ignore this q5 with respect to this e prime, क्योंकि वो q5 को उधर लाएंगे तो बन जाएगा e prime minus q5 into psi. So e prime जो है that's much larger than q5, so that q5 is gone. So now this equation is only up to this. So इसके अंदर ये जो ईटा है इसके जगह पे जो ईटा हमने यहाँ से फाइंड किया ये 2mc स्क्वायर को इधर नीचे लाके इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. So we will have an uncoupled equation only for psi. I'll get E prime psi is equal to C minus iota h bar del minus qa sigma, और जो ईटा है इसकी जगह पे ये आ गया. So I have 2mc, so ये तो खैर नंबर है माइनस iota h del minus qa dot sigma dot psi. Okay, so जिसका मतलब है let's use this identity. Okay, so but सॉरी क्या ई ईटा ये क्वेश्चन है ना जी. ये ई की जगह पे ये सब हमने अज्यूम कर लिया ना, तो वो जो माइनस एम सी स्क्वायर है वो इधर आके ऐड होके 2 हो जाएगा ना. ई
नहीं ई क्यों होगा? नहीं लेकिन आप वो लिमिट जब हम बात करें तो आप इधर थे या आप बाद में आए हैं कि ये देखिए, ये दिया आपको, ये समझ आ गई अब? ये ई को मैंने रेस्ट मैस जो एनर्जी है और बाकी सारी एनर्जी में चेंज कर दी, ठीक है, बस दो पार्ट में लिखती है। तो वो माइनस एम सी स्क्वायर वाला टर्म है ना लास्ट पे, वो भी इधर ले आए तो ये 2 mc² हो जाएगा ना, ठीक है। वो मैंने इधर नहीं लिखी, अभी ये क्यू फाई है सिर्फ, वो माइनस एम सी स्क्वायर भी इधर आकर प्लस हो गया, ठीक है। तो अब देखें हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं व्हेन kinetic energy and potential energy are much smaller than the rest energy. So it means I can ignore this E prime with respect to 2 mc². So इसको इग्नोर कर दिया तो इसलिए वो E नजर नहीं आ रहा ना आपको ईटा के साथ, क्योंकि ये जीरो है विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो उधर लेके ना, ये C है तो 2 mc हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये कुछ कंपेयर नहीं हो रहा, सो नहीं सॉरी, ये मैं Q5 मैंने हटा दी, ये नहीं हटाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि Q5 तो नहीं जाएगा, ये तो Q5 इसलिए चला गया ना कि दिस इज स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू 2 mc², तो ये Q5 तो यहाँ पे कोई mc² वाला टर्म ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई दैट स्टिल स्टेज, ठीक है। क्योंकि जब हमने ये E की जगह पे E प्राइम प्लस mc² रखा था ना, तो एक mc² वाला टर्म इससे कैंसिल हो गई है, तो ये सारी टर्म स्मॉल है बेसिकली, ओके। तो अब उसके बाद जो ये जो ईटा है इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और अब देखिए अब सारी इक्वेशन जो है वो सिर्फ साए में आ गई है, ठीक है। अब I'm just going to state an identity which is from vector calculus, but I'll explain it. What does it mean? So ये जो क्वांटिटी है इसका जो स्क्वायर है, this can be written as minus iota h cut del minus qa square plus iota sigma dot minus iota h cut del minus qa cross minus iota h cut del minus q. Basically ये आइडेंटिटी है वेक्टर कैलकुलस में, you can check it yourself, that if you have some, let's say vector a dot, you know, this sigma square, this can be written as a dot a plus iota sigma. Actually it's more general, a dot sigma की बजाय even if you have a dot sigma b dot sigma, that can be written as a dot b iota sigma a cross b. So this is just a special, ये just vector है, so ये a dot sigma हो गया, so a dot a is a square plus sigma a cross b, okay. So this comes from vector calculus, you can actually prove it, it's not that difficult. The sigma is that you know, Pauli operator, okay. So अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें इस इक्वेशन के अंदर, तो जो इक्वेशन है ना वो बन जाती है, और बल्कि वी माइट नीड मोर आइडेंटिटीज, ओके। बल्कि आपको पता ही होगा, लेट मी जस्ट राइट देम, आई थिंक यू गाइस आर familiar with these identities. That curl of a gradient of a scalar is 0, and then a cross a is 0, then actually curl of some
there is this identity as well. तो अगर इन आइडेंटिटीज को यूज करें तो वो जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, लिखी जा सकती है। E prime psi is equal to 1/2m minus iota h bar del minus qa square minus qh bar 2m sigma dot del cross a plus q phi into psi bar, बल्कि psi bar सारे के साथ ही आता है। ये देखिए वो जब ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं ना तो वो जो टर्म है ना उसमें a डॉट सिग्मा फिर उसके साथ है a डॉट सिग्मा अगेन, उसकी वजह से हमारे पास आ जाता है ये a स्क्वायर माइनस सिग्मा डॉट वो दोनों, वो जो क्रॉस लिखा हुआ है नीचे, तो वो क्रॉस पे सिर्फ जो डेल क्रॉस a वाली टर्म है वो सर्वाइव करती है, दूसरी कैंसल आउट हो जाती है डेल क्रॉस वाली, और ये Q5 वही जो ऊपर आ रहा है। अब जो है यू कैन इजीली कंपेयर इट विद श्रोडिंगर इक्वेशन। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है कंपेयर विद श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर अ पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो ये है that E psi is equal to 1/2m minus iota h का del minus qa square, this is ये p square h को पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ना बाहर वाले में, तो जो p है उसकी जगह पे p माइनस qa आ जाएगा, और प्लस q phi psi, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये Q5 पोटेंशियल एनर्जी है जिसको V अक्सर आप लोग लिखते हैं V ऑफ R। ठीक है, और ये चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल है तो ये स्क्वायर आ जाता है। सो दिस इज व्हाट द Schrodinger equation gave you, but here we have one extra term and that is this, और ये जो टर्म है if you see it it's nothing but this के minus QH bar 2m, by the way ये जो सिग्मा है, let me write it, sigma x ux sigma y, अच्छा ये मैं यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल यूज कर रहा हूँ अभी, ऑपरेटर के लिए नहीं, यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा z uz, और जो डेल क्रॉस है ये बी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मजीद इसको अगर आप देखें तो लेट्स से योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज along z axis। ठीक है, let your b external is some bz uz, तो अगर ये bz uz है तो uz का डॉट प्रोडक्ट के साथ 1 आ जाएगा, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, so I'll get sigma z pc। so ये sigma z you're used to it writing it like sz, so मैंने जरा s sigma लिखा हुआ। so अगर आपको कहा जाए ना कि एक इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन हाफ पार्टिकल है फर्क करें और वो एक्सटर्नल फील्ड में है, या हाइड्रोजन एटम का ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो व्हाट्स गोइंग टू बी यू नो द इम्पैक्ट इन एनर्जी, तो हम उसको फिनोमेनोलॉजिकली लेकर आते हैं। ठीक है, वी से ओके इफ वी हैव एन इलेक्ट्रॉन with some magnetic moment m in an external magnetic field b, its energy is minus mu dot b, right? So mu is the magnetic moment, and then so this is mu z bz, or jo mu z hai we then relate it to the angular momentum operator, let's say sz, and we can introduce some constants here, for example just for convenience ki ye particular form pe le lete hain, so sz bz, and then you make a postulate कि sz का क्या होगा
that it might have some form perhaps similar to uh, orbital angular momentum, and then we put together things and try to bring it into this form, like some GE times uh, E H bar over M, some sigma Z B, इस तरह से करके हम लिखते हैं, and then we say that where G is something depending on electron. But यहाँ पे ये जो अब Dirac equation है, even the zeroth order approximation is giving us the impact of spin right away. ये जो sigma Z operator है, when this operates on psi, ये जो psi है, remember this is a 2/1 vector. So ये जो 2/1 vector है, जो sigma Z operator है, इसके eigen vectors हैं 1 0 और 0 1. So 1 0 you can identify with spin up, 0 1 with spin down, और दोनों के लिए इसके eigen values different है, plus minus half. So for one of the orientation, it means for one of the spin you get something times this QH2M. और इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख लेना, GE और तो बेसिकली वो सारा करके, तो ये जो फॉर्म है ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट हो रही है जो स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का इम्पैक्ट होता है. We don't have to do any extra hypothesis and impose the energy correction through that phenomenological process. Okay, so any question? थोड़ा सा इसमें काम जरा शो करने के लिए वो ये आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ती हैं, but that's not a big deal. All right, so ये जो part है, I just wanted to show that this impact of external magnetic field, जो कि हम normally इस form में लिखते हैं, it can be shown from this thing. Okay, so let's now go to the actual problem that we have been trying to tackle. ठीक है, हमारा जो जी कौन सा पोटेंशियल? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको जो उसका जो हैमिल्टोनियन है वो हमें तो नहीं पता था कि क्या फॉर्म उसकी है. तो देखिए, हमें ये पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसकी एनर्जी क्या होती है? दैट इज म्यू डॉट टी. दैट्स प्रूव यू कैन कम फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड एंड सी द एनर्जी. जो हाइपोथेसिस है वो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है व्हेन वी से दैट दिस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज ड्यू टू सम इंट्रिंसिक स्पिन and that spin obeys the same operator rules as, let's say, any other angular momentum, and then we as an ad hoc basis introduce a momentum operator और उसकी जो eigen value है वो हम खुद से चूज करते हैं कि ये ऑपरेटर है और ये इसके eigen values हैं, and then we put it into the Schrodinger equation. but यहाँ पे कोई हमने assumption कुछ भी नहीं किया, so that naturally वो टर्म ऑलरेडी आ रही है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. इवन फॉर द जीरोथ ऑर्डर करेक्शन, आई मीन अभी हम पार्टिकल को रिलेटिविस्टिक भी नहीं ले रहे, हमने वो रिलेटिविस्टिक वाला पार्ट वैसे ही खत्म कर दिया. एनर्जी हमने इतनी छोटी अज्यूम की है कि देयर नो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट. ठीक है, ओके. सो लेकिन असल में जो हम ये काम करने चले थे ना, हम ये जो हाइड्रोजन एटम है, व्हाट आई एक्चुअली वांटेड इज टू सी के फुली रिलेटिविस्टिक जो इसका स्पिन इंक्लूजन, एक्चुअली ना सिर्फ स्पिन बल्कि जो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अज्यूम करते हैं एज p²/2m. इसमें भी एक अजम्पशन है कि हम इसकी एनर्जी क्लासिकली कंप्यूट कर रहे हैं, वेयर इमेजिनिंग की स्पीड बहुत कम है, बट इन जनरल देयर आर नो रीजन टू अज्यूम द स्पीड इज वेरी लो. सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बेसिकली यूं आनी चाहिए थी ना. हमें पता ना E² होता है p² c² प्लस
m स्क्वायर c4, तो काइनेटिक एनर्जी तो बनती है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, और ये है काइनेटिक, इसमें रेस्ट मास भी शामिल होती है ना, मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ तो ये ई बन जाएगी, और इसको आप लिख लें ई को काइनेटिक प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर माइनस, तो हमें तो ये लेके चलना चाहिए ना बजाय इसके, ठीक है, टू अकाउंट फॉर फ्लूइड। सो what I want to now do is find a Hamiltonian which is general enough to consider all of these things. अब इसमें चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी नहीं है, ये चार्ज न्यूक्लियस स्टेशनरी है, तो हम अभी इन Dirac इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर अ सिचुएशन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज जीरो, और जो q phi है मेरा, लेट्स जस्ट कॉल इट फॉर सिंपलिसिटी एज v of r, जो कि हम हाइड्रोजन एटम की नोटेशन से फेमिलियर है, या just v. Okay, so now our equations will become, and let me go back to those same equations. And I have E prime psi bar psi C actually minus iota C H bar del dot sigma dot eta plus V psi, और जो दूसरी इक्वेशन है E bar plus 2mc square psi eta minus iota C H bar del sigma dot psi plus V eta. ठीक है, अभी ये इक्वेशन एग्जैक्ट है बाय द वे, ठीक है, मैंने अभी अप्रोक्सीमेशन वो जो इस टर्म के लिए की थी ना, वो अभी इस पे नहीं लगी हुई, दीज आर स्टिल एग्जैक्ट Dirac इक्वेशन। अलबत्ता ये थोड़ी सा सिंप्लीफाइड इसलिए नजर आ रही है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दी है, क्योंकि उससे अदरवाइज इट विल बिकम टू convoluted to even do in the class. You might have to sit yourself on a paper and find out all the terms. Okay, so लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी भी स्विच्ड ऑन है, जो हमने वो v की फॉर्म में लिख दी है ना, so this v is equal to q phi. So ये अब इक्वेशंस हैं। So अब हम जो अप्रोक्सीमेशन है वो 0th ऑर्डर से थोड़ी ज्यादा ऑर्डर की रखेंगे, बट फॉर दैट अगर यहां से देखें तो अब ईटा जो है ना मेरा वो बन जाएगा, ईटा इज, अच्छा ये v को भी इधर ले हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर e प्राइम प्लस 2mc स्क्वायर माइनस v अच्छा ठीक है, इनटू माइनस आयोटा सी एच बार डेल डॉट, क्योंकि इसके अंदर कोई डेरिवेटिव ऑपरेटर नहीं है, तो फॉर सिंपलिसिटी लेट्स राइट दिस on this side, they commute both of them, dot psi. अब इसको जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E प्राइम साई बार इज इक्वल टू, इस सारे को हमने रखना है यहां पर जाके, ठीक है, ये ऑर्डर जरा ध्यान में रखना है। सो दिस डेल डॉट सिग्मा इज कमिंग फर्स्ट एंड देन दिस इज कमिंग लेटर, लेकिन ये कांस्टेंट, हो ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस सी स्क्वायर एच बार स्क्वायर ओवर, नहीं सो ये जो है ये आ रहा है यहां पर, अच्छा ये है, इसको जाकर यहाँ पे रखना इसमें, और ये है तो स्केलर, सो दिस डजंट से एनीथिंग, लेकिन ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी,
और इसके अंदर कहीं एक्स वाई जी नहीं है, तो इसको जहां मर्जी लिख लें आप, इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ई प्राइम प्लस 2mc, नहीं, इसकी ये v जो है ना, दिस इज फंक्शन ऑफ r, सो आई कैंट राइट इट हियर। सो पहले जो है वो हम ये पार्ट लिखेंगे, सिग्मा डॉट डेल, और उसके बाद ईटा इसके बदल आ रहा है, फिर जो ये पार्ट है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पार्ट बनेगा 1 ई प्राइम प्लस 2mc स्क्वायर माइनस v ऑफ r सिग्मा डॉट डेल साई बार, और देर इज दिस टर्म प्लस v साई। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि जो ये टर्म है, दिस इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन बाय दिस ऑपरेटर, तो ये जो नीचे वाली टर्म है, लेट्स गो टू द अदर बोर्ड, वन ओवर ई प्राइम प्लस 2mc स्क्वायर माइनस v। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने ये किया था, हमने कहा था ये वैसे ही इससे बहुत छोटी है तो इसको जीरो ही ले लें, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ टेकिंग जीरो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। उसके लिए आई कैन राइट इट्स टेलर सीरीज, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2mc स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस ई प्राइम माइनस v of r over 2mc स्क्वायर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने इन दोनों को इससे छोटा लिया था, so we just took it to zero and this was just this equal to, but let's keep it here. So this is nothing but with an inverse, तो अगर आप इसकी सीरीज ओपन करें तो ये बनेगा 1 माइनस ई प्राइम माइनस v 2mc स्क्वायर, जो नेक्स्ट टर्म है वो भी कुछ होंगी, ठीक है, but now instead of approximating to this order we are approximating it to the this order, so let's keep only this term पे ये जो पहली दो terms हैं, so this will become 1/2mc square 1 minus e prime. Okay, everybody understands the approximation? Okay, अब जो है इसको हम लाके तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारी डराक इक्वेशन बन जाएगी फॉर दी स्पिनर साई is minus h bar square over 2m sigma dot del 1 minus e prime minus v of r 2mc square sigma dot del psi plus v psi, ये आ गई है। अब हम इस पे थोड़ा सा वो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। देखिए ये है तो ऑपरेटर डॉट डेल है, बट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज सम डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो इसको जब हम इधर ऑपरेट करेंगे तो ये आराम से हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो ये 1 के साथ, तो 1 के साथ तो ये वैसे ही आ जाएगा, ई प्राइम साई इज माइनस एच बार स्क्वायर 2m सिग्मा डॉट डेल, ये स्क्वायर हो गया क्योंकि सिग्मा डॉट डेल और सिग्मा डॉट डेल ये 1 की वजह से सिग्मा डॉट डेल स्क्वायर हो गया, और देयर इज अ साई बार। अब दूसरी टर्म भी है, ये सिग्मा डॉट डेल ने इस और इसके प्रोडक्ट पे ऑपरेट करना है, तो उसके लिए वी कैन यूज द प्रोडक्ट रूल कि पहले ये इस पे ऑपरेट होगा तो ये साथ वैसे ही आएगा, फिर ये जो है ये इस पे ऑपरेट होगा, दिस बिकम स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा। तो ये टर्म्स बन जाएंगी माइनस एच बार स्क्वायर
नहीं, ये बनेगी माइनस एच बार स्क्वायर 2m, नहीं गलती होगी, ये जब ये आ गया, हाँ ठीक है, जब इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा माइनस दिस ई प्राइम माइनस वी एफ आर 2mc स्क्वायर जी प्लस, हाँ ये प्लस आ जाएगी, ठीक है। और फिर एक टर्म आ जाएगी फिर एक टर्म बचेगी जब इसको इस पे करेंगे, जब इस पे करेंगे तो ये देखें ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के सारे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, ठीक है, और सिर्फ ये डेरिवेटिव बचेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन, तो माइनस एच पावर स्क्वायर 2m, और ये 2m सी स्क्वायर भी है, सो 1/2m c स्क्वायर सिग्मा डॉट डेल v इंटू सिग्मा डॉट डेल psi प्लस v psi। ठीक है जी, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अच्छा ये जो है यू कैन इजिली चेक दैट इट्स स्क्वायर इज डेल इटसेल्फ, ठीक है, सिग्मा डॉट डेल जो है इसका जो स्क्वायर है दिस इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, सिग्मा एक्स डेल एक्स प्लस सिग्मा वाई डेल वाई प्लस सिग्मा जी डेल जी होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है if you work it out this actually comes out to be just del square। ओके सो ये भी डेल स्क्वायर हो गया, ये भी डेल स्क्वायर हो गया, और ये टर्म जो है वो आ गई हमारे पास, प्लस ये जो डेल वी है इसको जस्ट देखें, दिस इज चूंकि वी हमारा सिर्फ फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, हम इसको ले रहे हैं जो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का, तो दिस वुड बी नथिंग बट पार्शियल वी में पार्शियल आर r hat, so this is just an r directed derivative of v with respect to r, so del v आ गया। अब जो है एक और टर्म है हमारे पास, और वो है हमने फिगर आउट करना है what is this, so this is sigma dot del v and into sigma dot del, let me use the next board, बल्कि इसी पर let me write a few identities here जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक दूसरी जो आइडेंटिटी है del v dot del psi, this is nothing but dv by dr पार्शियल psi by पार्शियल r। उसकी वजह ये है कि ये जो डेल v है दिस इज पार्शियल v भी पार्शियल r इनटू r हैट, तो जो डेल psi है उसमें और कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो ओनली अ कंपोनेंट अलोंग r विल सर्वाइव, और चूंकि ये जो v है ये सिर्फ फंक्शन ऑफ r है, तो आई कैन आल्सो राइट इट एज dv by dr, I don't need to use partial derivative, so this del v is this, तो इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो डेल साई के अंदर तो इन जनरल आर थीटा फाई तीनों कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ओनली अ कंपोनेंट अलोंग आर सर्वाइव व्हिच इज पार्शियल साई बाय पार्शियल आर, तो जहां पे डेल वी डॉट डेल साई आर है, जैसे इस तरह के जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वहां पे वी कैन यूज दिस थिंग। एक और चीज जो है, लेट्स recall this thing, अच्छा अब ये जो है सिग्मा डॉट डेल वी
term into sigma dot del psi. ये वही जो हमने आइडेंटिटी पहले थोड़ी देर पहले देख रहे थे, a dot sigma b dot sigma. ये एग्जैक्टली वही चीज बनी. अब ये एक हो गया a और ये b हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज del v dot del psi plus iota sigma del v cross del psi. ओके, सो ये टर्म उसमें है ना, वो जो सेकंड लास्ट टर्म है उसके अंदर. तो इसको एक्सपेंड करके यू बन सकता है. ये हमने अभी देखा है कि दिस इज dv by dr पार्शियल psi बाय पार्शियल r. अब इस टर्म को देखते हैं जो del v क्रॉस del psi है. तो जो del v क्रॉस del psi है, this essentially becomes, so this del v cross del psi, del v cross del psi is dv by dr r hat cross del psi. और अब इसको इधर छोड़ दें एंड लेट्स लुक एट अदर थिंग. जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, वी डिफाइन इट एज लेट्स से p. तो जो r क्रॉस p और जो l डॉट s ऑपरेटर है, वी कैन डिफाइन इट एज r क्रॉस p dot s, which means that I can write it as this r cross p is r cross minus iota h del. ठीक है, या मैं इसको समय लिंक करने जा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम और स्पिन कपलिंग के साथ. तो जो ये टर्म है उसको हम जरा आप देखने जा रहे हैं, उसके लिए आई एम जस्ट वर्किंग आउट दिस अदर रिलेशन. तो जो लीनियर मोमेंटम है, इट्स r क्रॉस p. सॉरी, ये l है एंगुलर मोमेंटम. जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इट्स r क्रॉस p, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम. और जो लीनियर मोमेंटम को आप r क्रॉस करें तो दैट्स व्हाट वी कॉल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये जस्ट एंगुलर मोमेंट, आप असल में इसको जस्ट एंगुलर मोमेंटम बेशक कह लें, बट सिंस द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, सो वी कॉल इट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. बेसिकली अगर आप क्लासिकली विजुअलाइज करना चाहते हैं तो ये, सो एन इलेक्ट्रॉन इज डूइंग समथिंग हियर, सो इट हैज एन a linear momentum. So in general it also have an angular momentum. So the angular momentum it's r cross p, where r is this thing. और चूंकि हम solutions को हम orbit कहते हैं, so that angular momentum which is due to the translational motion of the particle is called orbital angular momentum. ठीक है, but it's nothing but the angular momentum of the particle. अब मैं अब ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम. अब इसका मैं स्पिन के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ. सो एल डॉट एस जो है, वेयर एस दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर. ठीक है, सो दिस वुड बी आर क्रॉस, सो ये जो पी है, क्योंकि पी होता है माइनस आयोटा एच डेल, सो दिस बिकम्स दिस. और जो ये माइनस आयोटा बाहर ले लेते हैं, माइनस आयोटा, so this is nothing but r cross del dot this s. और ये s जो है, दिस इज बेसिकली जिसको हम अभी सिग्मा कह रहे हैं अपनी इस नोटेशन के अंदर. ठीक है, हमारा सिग्मा जो है दैट इज एसेंशियली अपॉली ऑपरेटर वेक्टर. ठीक है, उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी है, तो दिस s इज एसेंशियली दैट सिग्मा. तो अब ये जो टर्म है इसके अंदर देखें ये क्या है, दिस इज, ये हो गई प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा, और ये जो है डेल वी, सो दिस इज डी वी बाई डी आर, आर यूनिट वेक्टर. ओके, एंड क्रॉस डेल साई, सिग्मा इधर लिख देते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है. सो अब इसको मजीद हम देखते हैं, दिस विल बिकम
dv by dr partial psi by partial r plus iota। एक में r से डिवाइड कर देता हूं और एक r इधर लिखा देता हूं। So this becomes then r vector क्रॉस del। तो एक इस तरह करते हैं, h कट से भी डिवाइड कर देते हैं और एक h कट इधर भी लगा देते हैं, डॉट सिग्मा। So this thing is now dv by dr partial psi by partial r plus iota h cut iota over h cut r। So ये बन गया dv by dr। So this r cross del is this L operator, so r cross del with minus iota h cut। So ये प्लस है तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कर देता हूँ, ये iota और जो h cut है this goes here, so this becomes L cross p dot sigma। So ये sigma जो है ये वही है जिसको यहाँ पे s कह रहे हैं। So now you see that the coupling of orbital angular momentum और जो spin angular momentum है that is happening here। So अब वो जो हमारी वो वाली इक्वेशन है उसके अंदर हमने वो डेल स्क्वायर हो गई, वो भी डेल स्क्वायर होगी जो सिग्मा डॉट डेल है, और जो ये टर्म है सिग्मा डॉट डेल वी और सिग्मा डेल ये वाली, इसको हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई। एक जो है वो एल एस कपलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी ये टर्म है, इसको भी देखते हैं हम ये कहां से आ रही है। ओके अब इन सब को सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो है, सॉरी जो एस और सिग्मा का रिलेशन है ना वो ये है। सो एस एंड सिग्मा एच बार बाय 2 का रिलेशन है, ठीक है। सो इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा एच का मसला हो गया, ये सिग्मा है तो इसके जगह अगर मैंने इसके जगह पे, हाँ अभी नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पे एस कर देता हूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2/h। सो एक 2 इधर लगा देता हूं और ये h बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन इसको और बाकी सब चीजों को वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी इसकी तो ये बन जाएगी। सो वी हैव e prime psi is equal to minus h bar square 2m del square plus h bar square 2m e prime v of r 2mc square del square plus 1/2m square c square 1/r dv by dr L dot s। ये मैंने गलत लिखी है, ये r क्रॉस डेल जो है दिस इज एक्चुअली L, ठीक है, क्योंकि ये p मोमेंटम है, ये r है तो r क्रॉस p इज L। सो L dot s, बल्कि मोर टेक्निकली दिस इज S1 2 3 bars minus h bar square 4 m square c square dv by dr partial r, and there is a psi spinner here, so this is also a spinner, this is not scalar, this is a 2/1 vector। अब ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। सो अगर आप इसको श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करें, अच्छा कंपेयर से पहले एक दो और छोटी सी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ये जो E प्राइम माइनस V टर्म है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्योंकि E प्राइम में है टोटल एनर्जी और उसमें से आप पोटेंशियल निकाल देते हो जस्ट काइनेटिक एनर्जी, और ये जो डेल स्क्वायर है दिस आल्सो corresponds to the so what we can do, del square जो I can replace it with minus p square over h bar square, और जो e prime minus v है we can also replace it with p square over 2m। और ये देखें
ये जो रिप्लेसमेंट है वो मैं इस टर्म के अंदर तो कर रहा हूं, उसके अंदर नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी तो आर्ग्यू किया जा सकता है ना कि यहाँ भी डेल स्क्वायर को आप ये माइनस पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। खैर वो कर देंगे तो वो पी स्क्वायर ओवर 2m ही बन जाएगा। बट और जो दूसरी चीज हम कर रहे हैं कि ई प्राइम माइनस वी जो है उसको ये पी स्क्वायर ओवर 2m से कर रहे हैं। एक ये सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये बन जाता है ई प्राइम साइज माइनस एच बार 2m डेल स्क्वायर प्लस, या चले इसको भी पी स्क्वायर ही लिख देते हैं। सो दिस इज पी स्क्वायर ओवर 2m। तो ये बन जाएगा, एक तो इसकी वजह से आ गया पी स्क्वायर ओवर एच बार स्क्वायर और इसकी वजह से आ गया पी स्क्वायर ओवर 2m। तो टोटल मिला के सब कुछ ये बन जाएगा माइनस पी 4 8 m क्यूब सी स्क्वायर 1 ओवर 2m स्क्वायर सी स्क्वायर 1 ओवर r। और बाय द वे ये जो dv बाई डी आर है इसको भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। ये दिस इज d बाई डी आर ऑफ 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर ओवर r। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 ओवर r करेगा माइनस 1 ओवर r स्क्वायर। सो दिस बिकम्स माइनस r क्यूब l डॉट s माइनस h स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर dy by dr partial partial r साइन। तो ये आ गया हमारे पास। ओके अब इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में तो असल में सिर्फ हमने कोई मिस की है चीज। ये भी टर्म थी प्लस वी साई वाली, ये हम मिस कर गए। प्लस वी एफ आर साई पार। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में पास एक ये वी आता है और एक वो पी स्क्वायर ओवर 2m, और बाकी सब कुछ हम जो है वो हमने उसमें मिस किया होता है। तो और ये भी अभी देखें, दिस इज जस्ट the first term in the expansion of that 1 over e prime minus 2mc square minus v of r जो term है। तो जो exact result है उसमें you can expect many more terms, but you know until this point essentially अगर आप यहाँ तक solve करते हैं तो you include most of the physics that is there up to a very high degree, और आपके जो results हैं they agree very well with the experiments। देखिए experiments जो है they treat atom exactly in a way, right? So theory तो है जो उसके just कुछ कुछ part को हम model कर रहे होते हैं, but if you know have your theory up to this order, then your energies would compare very well with the experiment। अच्छा इसमें जब आप नॉन रेलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन डील कर रहे होते हैं तो you can still think about many of these terms and impose them phenomenologically। ठीक है, जैसे हमने वो जो टर्म थी SZBZ वाली, we can still figure it out using external magnetic field and energy concept by imposing the concept of spin external to quantum physics of Schrodinger equation। लेकिन यहाँ पे we don't have to do anything you know extra, everything क्योंकि ये already 2/1 spinner है, so spin is automatically being taken into account। इसी तरह जो ये टर्म है एक्चुअली इसको भी आप फिनोमेनोलॉजिकली ला सकते हैं। कैसे, क्या हम अब थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली होती है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम सी स्क्वायर, ये होती है। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें ना इसकी टेलर सीरीज, तो आप देखेंगे कि ये उसकी टर्म्स बनती है। फॉर एग्जांपल इसमें से अगर मैं एम स्क्वायर सी 4 कॉमन लूं तो स्क्वायर रूट की वजह से ये आ जाएगा
mc स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एम सी स्क्वायर। अब अगर इस एक्सपेंशन को हम खोलें तो ये बन जाता है एम सी स्क्वायर 1 प्लस हाफ पी स्क्वायर एम सी स्क्वायर। जो नेक्स्ट टर्म एक्सपेंशन में आती है वो आती है पी फोर 8 m पावर 4 c पावर 4 एंड सो ऑन एंड देन -1। ये अगर एम सी स्क्वायर सॉरी ये -1 आ जाएगा क्योंकि ये एम सी स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया बाहर। तो आप देखें तो ये +1 तो -1 से कैंसिल हो गया। अब अगर इस एम सी स्क्वायर को अंदर लेके आते हैं तो जो पहली टर्म बनती है वो असल में यही टर्म है, ठीक है, जो क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी है। और जो दूसरी टर्म बनती है वो यही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये एम क्यूब सी स्क्वायर, क्योंकि ये एम सी स्क्वायर अंदर आएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ये एम क्यूब हो जाएगा। तो so this is essentially a term which is correction to the kinetic energy due to relativistic motion। जो अगर हाइड्रोजन एटम आपका हाइड्रोजन एटम है तो यूजुअली इसकी जो वैल्यू है वो बहुत निग्लिजिबल होती है। बट लेट्स से इफ यू हैव अ हीलियम आयन जिसमें z स्क्वायर हो जाता है, एनर्जी इज वेरी हाई, और तो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है अगर उसको रिलेटिविस्टिकली आप इमेजिन करना शुरू करें तो उसकी जो स्पीड है इट स्टार्ट अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट। सो देन इफ यू जस्ट compare your energy of a helium ion which has only one electron, so like a hydrogen atom, then this term alone will give you, you know, erroneous result unless you include this one. Similarly, ये तो हमेशा होती है, अलबत्ता अगर आपका ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम है तो देन you know this would not impact because in ground state this L is 0, ठीक है। लेकिन ग्राउंड स्टेट या एस स्टेट्स के अलावा this term is already there and it's not that insignificant। ओके, ये जो टर्म है, अब इस टर्म को फिनोमेनोलॉजिकली इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट पीपल हैव स्टिल यू नो ट्राई टू थिंक ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड डार्विन टर्म। हाँ, यहाँ भी पुट कर लो, कोई बात नहीं जी। हाँ, जो डीवीआरडी वैल्यू है वही पुट करेंगे। सो ये जो डार्विन टर्म है, बेसिक इसको ना असल में एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी इस तरह से आती है कि दिस डजंट लेट दिस साई बार टू बी नॉर्मलाइज प्रॉपर्ली इंडिविजुअली। तो अगर इसमें इसका कॉन्जुगेट पार्ट भी ऐड कर दें तो वी गेट अ टर्म व्हिच इज एक्चुअली ऑफ दिस फॉर्म h स्क्वायर 8 m स्क्वायर c स्क्वायर and then it has uh, uh, a term proportional to delta of r, which means that this term is applicable only for those wave functions which are non-zero at the origin, so like s orbitals। बहरहाल ये जो इसकी एक explanation that people can think about is you know we write all of these potential and energies by imagining that the electron is, let's say, at a distance r from the nucleus, तो इस point at a distance r इसकी ये kinetic energy, ये potential energy होगी। But we know from quantum physics that you know we can really specify the position of particles only that is within only an uncertainty, ठीक है। तो अगर आप वो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी मदद से जो इसकी पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी को शामिल करें, which is equivalent to thinking that this electron is not a point particle but it's like smeared out within you know this distance which is imposed by uncertainty principle। तो क्योंकि इसमें हम पोटेंशियल तो पॉइंट चार्ज का स्टेट ले रहे हैं, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू थिंकिंग इलेक्ट्रॉन तो पॉइंट पार्टिकल है but the potential is due to a smeared out proton, ठीक है। So इस तरह से think करके that's why this term gives only appreciable effect if the wave function is non-zero at the origin। So we can think about this Darwin term as the term due to the jittering sort of electron that we can't really pinpoint it at one place।
नहीं, इसमें प्रोटॉन तो कहीं है ही नहीं है ना, उसमें तो हम पोटेंशियल V के थ्रू प्रोटॉन को ले रहे हैं, so this potential is the potential due to a point charge. So that's, you know, a classically imposed sort of setting. So proton is not a particle in this setting in hydrogen atom. नहीं देखो, ये इक्विवेलेंट है ना, आप अगर न्यूक्लियस को पॉइंट ही ले लें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, सेम थिंग कि मैं इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ले लूं और न्यूक्लियस को इमेजिन करूं कि दिस इज स्मीयर्ड आउट, ठीक है, because that explains why this term is non-zero only for those orbitals that have a wave function which is non-zero at the origin. Okay, so this was just an attempt to give you another perspective of treating hydrogen atom and maybe other particles a little bit more accurately. By the way, अगर आप in terms में ऐसे energies compute करें और उनको भी शामिल कर लें, तो that is a better representation of energies. और उसमें हम देखते हैं कि energies actually not only depend on n, they also depend on L and S, ठीक है. So hydrogen, even hydrogen का जो energy spectrum है, it's वो सारी degeneracies खत्म हो जाती हैं. Every state has a different energy for a given set of n, L and S because of this. वो हमें degeneracy इसलिए मिलती है कि we have excluded lot of things from the treatment anyway. And then that you know, structure of energy level structure is called fine structure. So fine structure हम उस वक्त कहते हैं किसी भी you know, atom की energy levels का, when we have included these relativistic terms. And just a final remark, this is still, you know, not enough to include all of the physics. When you study quantum field theory, then you can see that we have to include this fact that, you know, electron can around the hydrogen atom can suddenly disappear for a while, maybe, and there are two photons that are, you know, equivalent. Then electron may be reappear again. So particles can create and destroy uh, uh, momentarily because of the vacuum fluctuation. So because of that, there are additional energy corrections, very minor one, that also go into that. So बल्कि लोगों ने वो measure भी की हुई है. It's not something which is non-trivial. Okay, so any questions? Sir? जी आसिफ. सर यूजुअली हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व कर लेते हैं बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, और फिर हम ये तीनों करेक्शन कर लेते हैं, लाइक रिलेटिविस्टिक और डार्विन और डिराक इक्वेशन से मिलती है, तो वो मतलब सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं उनसे. ठीक है, वो सो आसिफ का क्वेश्चन है कि हम अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें और इनको ये जो करेक्शंस हैं ये अलग से इनकॉर्पोरेट कर लें, तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएंगे. अगर आप हैमिल्टोनियन के अंदर ये जैसे p⁴/8m³ c² टर्म डालेंगे तो आपको वही एनर्जी देगा जो ये देगा. जाहिर है वो तो मैथमेटिकल मशीनरी है कि आप ये टर्म हैमिल्टोनियन में डालेंगे तो एनर्जी तो वही आएगी जो इधर से आती है या उधर से आती है, तो रिजल्ट तो सेम आएंगे. जो फर्क है वो ये है कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन लेके उसमें ये चीज इंपोज करते हैं, so that is additional hypothesis that you are imposing on Schrodinger equation. But लेकिन अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो there is nothing additional that we are imposing. ठीक सर, अगर हम ये करेक्शन पर्टर्बेशन थ्योरी के थ्रू कर ले तो देखिए, आप मैकेनिक्स की बात करें, आप जब इसको सॉल्व करेंगे एनर्जी के लिए तो ऑफ कोर्स आपको कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज करनी होगी. इस टर्म को पर्टर्बेशन थ्योरी से एनर्जीज निकाल लें. दैट्स यू नो अ ट्रिवियल मैटर कि अगर आपको हैमिल्टोनियन गिवन है तो आप इसकी एनर्जीज निकालें. आप कहते हैं ठीक है, दिस इज मेजर टर्म, मैं पहले इसकी एनर्जी फाइंड कर लूं, फिर इनको 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 ऊपर उसके ऐड कर दूं, तो दैट्स ओके. असल हम यहाँ तो हम बात करें फिजिक्स की, ये जो टर्म्स हैं ये आ कहाँ से रही हैं. ठीक है सर, कि कैलकुलेशन के लिए तो ज़ाहिर पर्टर्बेशन ही मोस्ट लाइकली यूज करेंगे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट तो हम आज बात करें. समझ आ रही है आपको इस बात क्या से?
जी सर, आपकी आवाज मतलब कट रही है यहाँ यार। पर ये नेचुरली अपीयर हो रहे हैं डिराक इक्वेशन के अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो फर्क है वो यही है कि कंप्यूट तो जब करेंगे तो हैमिल्टोनियन ये गिवन है तो जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। असल तो चीज ये है कि ये टर्म्स आती कहाँ से हैं। ठीक है सर, समझ गया। ओके, थैंक यू। चलें जी, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। वो क्या सिर्फ और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।